Am I audible to everyone? Yes. Please respond. Yes. Yeah. So it will be interactive session actually. Instead of just I'll speak, because you have already done 1.5 day program on hydrogen. So you just understand many things. So we'll interact with each other actually. I think that is more good to understand the subject. So today's topic is innovation and entrepreneurship in hydrogen energy sector. So do you believe hydrogen will be one of the fuel of future? Do you believe that? Yes, Huh? it is. Yes sir. Students, please, do you believe it? जैसे पेट्रोल कार डीजल कार देखते हैं ना, सीएनजी कार्स, ऐसा हाइड्रोजन कार भी होगा. आप बिलीव करते हो? हाँ? Because you are the generation, so you will use this fuel. So you need to believe it first. Please. So look, here is a photograph I have taken from internet. This is a Easter parade at New York, Fifth Avenue. It happens at the beginning of 20th century. So what is happening here? It's basically show. So where they express their richness, their future, their dream actually. If you see this picture, what did you see? All the vehicles are horse-driven cart. That time only the horse-driven cart was the medium to transport in New York. I am not speaking about India. And if you see, there is no petrol or diesel vehicle at that moment. And I just reading this article in internet, I found only one vehicle was there, which was running at that moment with petrol, diesel, like conventional petroleum fuel. And then see, after 13 years, in 1913, all the vehicles, horse-driven cart was replaced by petroleum fuel car. So you just understand that if there is change happening, it happens very fast. So although that time people are not believing that car will, because you know, they were saying car का life 15 years में खत्म हो जाता है ना. So whatever is the cost, 5 lakh, 20 lakh, 30 lakh, it becomes zero. और हॉर्स ड्रिवन कार्ट जो था, हॉर्स आप सेल कर सकते थे लाइफ का एंड में. सो दे आर टेलिंग दैट ये तो कभी होगा ही नहीं. एंड नाउ यू बिलीव हॉर्स ड्रिवन कार्ट, क्या बुलॉक कार्ट अभी बिलीव, मतलब आप ड्रीम इमेजिन कर सकते हो. सो चेंजेस, हाउ चेंजेस इट हैपेंस इन न्यूयॉर्क in the world, and so you believe hydrogen one day it will be as a future fuel. There is no doubt about that. Then why we speak about hydrogen actually? Less emission. Thank you. तो बेसिकली व्हाट वी नीड एक्चुअली, वी नीड क्लीन एयर. क्यों बोल रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल चाहिए हमें, क्यों बोल रहा है? आपको थोड़ा आइडिया तो हुआ होगा ना, 1.5 साल है, मतलब 1.5 दिन आपने सुन रहा हो स्टोरी. क्यों बोल रहा है हाइड्रोजन में क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या अच्छा है, खास क्या है हाइड्रोजन में? There's no carbon. There's no carbon. Thank you sir. तो सर अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो बेसिकली क्या है, आप जैसा मीथेन है, पेट्रोल है, उसमें तो कार्बन है. जब बर्न कर रहा है कार्बन CO2 इमिट हो रहा है, इससे ग्रीन हाउस गैस. सो पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन पार्टिकल है. नाउ इट्स हाइड्रोजन इज कार्बन लेस फ्यूल. So and you know air quality in maybe Palwal is better, but if you go to Delhi it is 350 actually AQI, so which is very detrimental to the health. So that is why they speak about hydrogen, carbon less fuel. And if you see the journey of the mankind, हमारा शुरुआत किससे हुआ था? लोग पहले जो मतलब जो अर्ली मैन था, क्या यूज करते थे फॉर हीटिंग पर्पस? वुड. वेरी गुड, वुड. अब आप स्टोरी जानते हो, स्टोरी मेरे साथ बात करो, मेरे साथ इंटरेक्ट करो. वुड है, उसका बाद क्या आ गया? कोल आ गया. देन पेट्रोलियम फ्यूल, यस. देन CNG, natural gas. So the journey is from more carbon to less carbon fuel. So hydrogen is obvious, no one can stop it actually. So that's the reason. And second thing is little bit political, or what is the need of India actually. You know India, we do not produce crude or gas. We almost import 80% of the crude.
and 50% of the gas. So we need energy independence. We need एनर्जी इंडिपेंडेंस होने में क्या क्यों चाहते हैं हम बताओ? आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में सब। आत्मनिर्भर भारत बोल रहा है आजकल लोग, क्यों बोलता है? अगर बाहर से लेने में क्या दिक्कत है? पैसा लगता है, पैसा तो लगता है, ये डॉलर बिल जाता है। सेकेंड डिस्टर्ब, एग्जैक्टली मैम, डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि अगर कभी भी स्टॉप हो गया सप्लाई ऑफ क्रूड पावर, देन ये जो हमारा कंट्री चलेगा बिना एनर्जी का। आप सोचते तो इस रूम में पावर नहीं है, आपका घर में पावर नहीं, यू कैन नॉट इमेजिन दैट नाउ, तो क्या हो जाएगा? सो वी नीड आत्मनिर्भर भारत, वी नीड एनर्जी इंडिपेंडेंस, वी हैव लिमिटेड रिसोर्स, सो वी नीड ए सस्टेनेबल सोल्यूशन। सस्टेनेबल मीन्स क्या, कौन बोल सकता है? सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? चलता रहे, चलता रहे। हाँ, और स्टूडेंट्स आप लोग बताओ ना थोड़ा, सर तो सब जानते हैं। हाँ, अभी का जरूरत तो हो जाए, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन को हम बचा के रखें। ये अब आप अपना लैंग्वेज में बात करो मेरे साथ, ठीक है? और क्या प्रॉब्लम है? और दूसरा बात है, हम जैसे सर बोलो ना, क्रूड इंपोर्ट करते, क्रूड प्राइस भी बढ़ता है, कम होता है। आप सोचते हो इंडियन ऑयल तो बेचता है पेट्रोल, ये तो 90 क्यों हो जाता है, 100 हो जाता है, तो वी आर बाउंड टू शार्प, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, बट वो क्रूड प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। सो आवर इकोनॉमी इज होली डिपेंडेंट ऑन अदर्स एक्चुअली। सो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जब हो जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड थर्ड इज द एनवायरमेंटल, आजकल का जनरेशन एनवायरमेंट का ज़्यादा कंसर्न है, वी नीड क्लीन एयर। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इज प्रमोटिंग टू आस, टू आवर गवर्नमेंट टू प्रमोट हाइड्रोजन। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन वर्कशॉप हो रहा है, हाइड्रोजन आपको सिखाया जा रहा है, सो दैट आप अगर आप जॉब में जाएंगे तो हाइड्रोजन रिलेटेड बहुत जॉब क्रिएट होगा। स्किल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुई है, तो यू कैन गेट जॉब ओवर देयर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। यही पर्पस है यहाँ का, एंड दैट्स दे हैव डन एक्चुअली फॉर यू। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का बात अभी नहीं हो रहा था, बहुत दिन पहले ही हो रहा था, but it becomes a light when our honorable prime minister in 2021 in COP26 Glasgow he declared पंचामृत। ठीक है, पंचामृत में फर्स्ट क्या है? तो एनहांस नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 500 गीगावाट। अब देखो अभी जो कंट्री है ना, हमारा देश चलता है, कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, कोई बोल सकता, गूगल देख के बोल सकता है, इट्स ओपन क्लास, कितना एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। थोड़ा समझो, वैल्यू को समझो, मैंने सुनने में गल्प स्टोरी भी याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। बोलो कितना एनर्जी? 476 गीगावाट कंट्री का टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिसमें 49% इज द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी है? सोलर है और विंड एनर्जी। 49% ओनली वो है इंस्टॉल कैपेसिटी, जिसमें एक्चुअली 25% जनरेट होता है, बाकी नहीं होता है क्योंकि उसका लिमिटेशन है। सो गवर्नमेंट बोल रहा है बाय 2030 अभी जो 246 गीगावाट है, इट विल वी वांट टू इंक्रीज इट टू 500 गीगावाट। क्यों चाहना? एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा क्या कम होगा बाद में? बताओ। बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा सर। क्यों बढ़ेगा? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, हमारा कंट्री भी डेवलपिंग है, वी ड्रीम फॉर डेवलप्ड कंट्री। $30 मिलियन $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी तो 4 ट्रिलियन है। तो नॉर्मली जिस कंट्री का एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है ना, वो डेवलप्ड होता है, वही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज, fuel requirement will increase. So how will you meet that? So you need either you need to import more fuel, or you can whatever available in the country, like we have a abundant solar energy, wind energy actually. So if you can utilize that, that is why government launch all these missions. That is the purpose. So all are linked. Then the third is the to reduce the carbon intensity of the economy by 45% and will reduce carbon emission by 1 gigaton. अभी हमारा कंट्री कितना CO2 इमिट करता है? कौन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा CO2 कौन सा कंट्री इमिट करता है? क्या क्या लग रहा है आपको? यूएसए और चाइना सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन जो नॉर्म आता है इंडिया का ऊपर आता है। We emit only 7% of the CO2 of the world, which is 3.7 gigaton.
तो गवर्नमेंट बोला विल रिड्यूस इट, क्योंकि हमारा सिटी जो है ना, दिल्ली जैसा सिटी जो मतलब कंट्री के मिडिल में है, जहाँ पे एयर फ्लो